Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let's begin. आज का जो important articles है, they are here. But before that, I just want to wish you all a very happy Diwali. Everybody who is celebrating, let the warmth and peace comes to your home and be safe during Diwali. All right. So let us look at all the important articles for today. First one is Chief Minister announces a slew of initiative for tea workers. So tea garden workers के लिए Chief Minister of Assam ने कुछ important announcements किए हैं, वो हम लोग देखेंगे क्या क्या announcement किए गए हैं. इनको आप लोग in your answers you can incorporate these. ठीक है. जैसे सोशल जस्टिस का कोई टॉपिक आ जाता है या फिर आप GS1 में भी इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेकेंड इज 146 बर्ड स्पीशीज काउंटेड इन काजीरंगा. तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल आया है. एंड थर्ड इज चंद्रयान 2 मेक्स फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑन दी लूनर एग्जॉस्फेयर. तो यहाँ पर कोरोनल जो मास इजेक्शन होता है ना, वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आर्टिकल आया है. ठीक है. तो पहला है चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस अ स्लीव ऑफ इनिशिएटिव फॉर टी गार्डन वर्कर्स. जो टी गार्डन वर्कर्स है उनके लिए चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं. कौन कौन से अनाउंसमेंट है? अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुए हैं. इसका बिल जो है ये नवंबर में जो विंटर सेशन होता है उसमें ये लाया जाएगा और टी गार्डन वर्कर्स को लैंड अलॉटमेंट किया जाएगा. ठीक है. टी स्टेट या फिर लैंड अलॉटमेंट जो है वो किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आर्टिकल क्या आया है. Chief Minister Himanta Biswa Sharma, while addressing the concluding day of 19th biannual conference of the Assam Tea Tribe Student Association at Morioni College playground in Jorhat, made several key announcements aimed at the welfare and empowerment of the tea tribe community. जो टी ट्राइब कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए. ठीक है. और ये जो अनाउंसमेंट किए गए इसको बिल के रूप में पेश करना होगा. तो बिल के रूप में पेश आपके 25 नवंबर के दिन को किया जाएगा. ठीक है. He stated that on November 25, state government would introduce a bill on Assam Legislative Assembly to allot tea estate land to workers, ensuring every tea worker could own their land and live with dignity and security. तो यहाँ पर क्या है कि जो भी वर्कर्स है, जो भी टी स्टेट में वर्कर्स है, उन सबको लैंड दिया जाएगा ताकि वो भी अपना लाइफ जो है डिग्निटी के साथ जी पाए. लैंड फॉर us Indians is not just a piece of just a piece of land or something which is an asset. It is more than an asset. Rather, it is a source of livelihood. It is our dignity, right? So we have to we respect our land, like we respect our homes, like we respect our family. We respect our land too. And land is not just an asset for us. Rather, it is a part of our life and it is our dignity. One who especially in the rural and tribal belts, you would see those who has bigger of lands, they are considered more respectable. As as shallow as it sounds, but it is the truth. It is how it is, right? So land ko jo hai, it is not just a piece of asset which has a lot of value. Rather, it is it is a dignity for the workers, especially working in the tea estates. It is a source of livelihood. It is a source of security. It is a source of dignity. All right. Sharma recalled 3 years ago he had announced assembly his government planned to provide land workers by acquiring it from tea estate owners, and upcoming bill was a step forward in that promise. ठीक है. तो जो बड़े जो लैंड होल्डर्स है, जो टी स्टेट होल्डर है, उनसे जो लैंड लेकर और छोटे टी स्टेट्स को दे देंगे. ठीक है. और इन्हीं के साथ क्या है, in addition, Chief Minister also announced 3% reservation category in Class 1 and Class 2 civil service post under the tea tribe community, ensuring that to increase participation in administration and promote greater social empowerment. तो जैसे जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पर भी सिविल 1 and 2 सिविल सर्विस पोस्ट, मे बी इट कैन बी फॉर इंजीनियरिंग और जितने भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उन सब में पोस्ट रिजर्व किया जाएगा. 3% पोस्ट रिजर्व किया जाएगा फॉर टी ट्राइब कम्युनिटी. क्लियर. तो ये कुछ स्लीव ऑफ अनाउंसमेंट्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम जा सकते हैं. 146 बर्ड स्पीशीज काउंटेड इन काजीरंगा. तो काटी बिहू जो रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ हमने किया. तो काटी बिहू जो है बर्ड काउंट किया गया आपके काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में. वहां पर 146 बर्ड स्पीशीज यहाँ पर
काउंट हुआ है, ठीक है। देयर आर 146 बर्ड स्पीशीज, यू कैन इमेजिन इन जस्ट द स्मॉल tiger reserve and this national park we have 146 variety of birds. Can you imagine 146 varieties? You know, I don't think there would be 146 varieties of birds in European countries also, right? So it is very very crucial, ठीक है। हम अपना जो है जो बर्ड स्पीशीज है, जिसको हम फॉना स्पीशीज कहते हैं या फिर एवियन स्पीशीज भी कहते हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, राइट। तो देखते हैं 146 बर्ड स्पीशीज, इसमें 2 इंडेंजर्ड बर्ड्स भी है, जैसे कि स्वाम्प ग्रास बैबलर एंड पैलेस फिश ईगल। ये दोनों बर्ड्स जो है यहाँ पर यू नो ऑब्जर्व किए गए। 1919 इंडिविजुअल बर्ड्स है। काटी बिहू जो बर्ड काउंट हुआ है 2025 में इन दी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय असम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद पार्क अथॉरिटीज इन October 18. Among the surveyed location, Agoratoli recorded highest bird diversity with 89 species, followed by Gamiri and Panbari with 59 each, Panpur by 55 and Laukha by 37. तो बहुत ही बड़े से एरिया में ये काउंटिंग हुआ है, फ्रॉम काजीरंगा टू लाउखवा, ठीक है। मतलब पूरा नौगांव कार्बी आंगवांग वाला पूरा हिस्सा जो है वहां तक यहाँ पर बर्ड काउंटिंग हुआ है, बर्ड वॉचिंग भी हुआ है, ठीक है। The count identified 2 endangered, 6 vulnerable and 6 near threatened species, और बाकी 132 species जो है वो least concerned birds जो है हम देखते हैं। मतलब क्या है least concerned, मतलब they have a good decent amount of population। आप देख पाएंगे कि कंजर्वेशन बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चाहे वो राइनोस का हो, चाहे वो बिग 5 हो, ठीक है। आप लोगों को पता होगा बिग 5 के बारे में जो काजीरंगा में है, जैसे स्वाम्प डियर है, देन वी हैव वाइल्ड वाटर बफेलो, देन वी हैव एलिफेंट्स, राइट, देन वन हॉर्न राइनो एंड रॉयल बेंगोल टाइगर। ये जो बिग 5 है उसके साथ साथ हमने फौना के जो स्पीशीज है, जो एवियन स्पीशीज है, उनको भी हमने काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। The initiative aimed to promote bird monitoring, spread conservation awareness and local community involvement, especially women forest staff and younger generation. तो women जो है, जैसे आई थिंक यहाँ पर एक बटालियन भी है, इसको वन दुर्गा बटालियन भी कहते हैं। वो बटालियन जो है वो 500 वुमेन का एक बटालियन है, जो कि सिर्फ और स्पेसिफिकली काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, ठीक है। तो विमेन पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो इट हैज बेयर सक्सेस मोर देन मास पार्टिसिपेशन। अगर आप देखें मेन एंड फीमेल का कंपैरिजन, अगर आप रेशियो निकालें, विमेन जहाँ पर भी ह्यूज नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा जो है कंजर्वेशन एफर्ट बहुत अच्छे से लगता है। जैसे आप देख पाएंगे फॉर एग्जांपल जो हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन के नेतृत्व में जो आपके हारगिला को सेव किया गया है, या फिर आप देख पाएंगे सैक्रेड ग्रूव जो है आपके मेघालय में जो विमेन सेव करती है, साथ ही चिपको मूवमेंट है, खेजड़ी ट्री मूवमेंट है, एंटी अरैक मूवमेंट है। ये सब मूवमेंट जो है विमेन के द्वारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये सब जो है विमेन के द्वारा किया गया एंड काफी ज्यादा इसको अटेंशन भी मिलता है और साथ ही कंजर्वेशन एफर्ट्स भी बहुत अच्छे से लगाए जाते हैं, ठीक है। 63 पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें स्टूडेंट्स थे, रिसर्चर्स थे, फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, बर्ड एंथुसियास्ट थे, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और की 5 लोकेशन अगोरातोली, पानबारी, गामिरी, पानपुर एंड लाउखवा, इन रीजन्स में काउंटिंग किया गया, ठीक है। और इसमें एक की हाईलाइट क्या है, देखिए अगेन फीमेल फॉरेस्ट स्टाफ जो है इसमें बहुत ही ह्यूज नंबर पे पार्टिसिपेट किए, यू कैन सी हियर, ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी है विमेन पार्टिसिपेंट्स जो है। तो ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज जो है हमें मिला है, ठीक है। चलिए लास्ट न्यूज फॉर द डे इज चंद्रयान 2 मेक्स फर्स्ट ओवर ऑब्जर्वेशन ऑन लूनर सरफेस एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर सन जो है आपको पता है कोरोनल मास इजेक्शन होता है, देयर आर 6 layers of the sun. Our outermost layer is corona, right? Core, radiative zone, then convective zone, photosphere, chromosphere and corona. ये छह आपके लेयर्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। तो 6 लेयर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको हम कोरोना कहते हैं, वहां से मास इजेक्शन होते हैं, ठीक है, उसको हम कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं। उससे वो कोरोना के लेयर से प्लाज्मा रिलीज होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो रिलीज होता है, प्लाज्मा में जो है होता है बहुत सारे टाइप के मैग्नेटिक फील्ड्स जो है उसके अंदर होते हैं। उसी कोरोना के अंदर जो है आपके एक्सरेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, देन गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, सारे टाइप के रेज जो है उस वो कोरोना में होता है। देन वो सन जो है टाइम टू टाइम वो कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो करता है, ठीक है। तो जियोमैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है ये डालता है, ठीक है।
तो पहली बार चंद्रयान 2 ने इसको ऑब्जर्व किया इन दी लूनर एग्जोस्फेयर। तो मतलब जो लूनर के एग्जोस्फेयर में पहली बार जो है कोरोनल मास इजेक्शन जो है रीड किया गया। किसने रीड किया है? चंद्रयान 2 ने। ठीक है। The lunar orbiter of India's second mission Chandrayaan 2 has made the first ever observation of the effects of coronal mass ejection on the moon. ठीक है। The Chandra atmosphere composition explorer CHASE, ठीक है, payload on orbiter had made the observation. The Indian Space Research Organization (ISRO) said on Saturday that the observation from CHASE 2 showed an increase in total pressure of daylight lunar exosphere very thin atmosphere where the CME impacted the moon। ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हमें प्रेशर में, वहां पे जो प्रेशर जो है, वहां जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो फील हुआ बिकॉज कोरोनल मास इजेक्शन हैड हिट द एरिया। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द एनवायरनमेंट डिराइव्ड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन शोड एन इंक्रीज। ठीक है। तो डेंसिटी है वो उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला, एटम्स में जो डेंसिटी है उसमें इंक्रीज देखने को मिला मोर देन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। This increase is consistent with earlier theoretical models which predicted such an effect, but CHASE 2 on board Chandrayaan 2 has observed such an effect for the first time। ठीक है। तो जो CHASE 2 है उन्होंने पहली बार ऐसा इफेक्ट कुछ देखा है। ठीक है। वैसे पहले ये थ्योरी में बताए गए थे कि ऐसे कुछ मॉडल्स बनाए थे जिसमें पता चल रहा था कि अगर कोरोनल मास इजेक्शन होगा तो इस तरीके से रिएक्ट होगा, जो एटम्स है वो इस तरीके से रिएक्ट होगा, लेकिन वो थ्योरी जो है प्रैक्टिस में हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ द रिसेंट कोरोनल मास इजेक्शन। तो हमने चंद्रयान 2 है उन्होंने पहली बार इसको डिटेक्ट किया। ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 1 2 3 4 सब कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। All right, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you. And again, wish you all a very 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 happy Diwali and wish you all the warmth and love. Okay? Thank you.